Hello everyone, welcome to the new series or the one short series of Git and GitHub. We will be talking about Git and GitHub in detail, and because this is so important for coders, programmers, software developers out there, so I needed to make this lecture, this one short video. Okay, so stay uh, till the end and don't forget to like, share, and subscribe the channel. So firstly, as you can see, we have one big screen over here where we have Git and GitHub. Curiosity Unleashed, it's by Curiosity Unleashed, right? So फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट गेट देन गिटहब। और हाँ, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। गिट अलग चीज़ है, गिटहब अलग चीज़ है। बोथ ऑफ देम आर वेरी 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 डिफरेंट। डोंट mess both things with each other because then it will create a problem for you. Okay, so now we will be moving upon what is git. Okay, so let's move आगे बढ़ते हैं। Okay, so what is git? ठीक है, अब इसको व्हाट इज गिट, क्या है गिट? ओके, सो गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट इज व्हाट? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम that is used to monitor modifications in a code. There are so many types of modifications in a code. When you write a particular code, you make many type of modifications in that. Okay, like it is if one person is writing the code and you need to modify something in that, so that is a git, the version control system, so that is git. Okay, so now what is next for us? The next thing for us is git is a version control system. Git is a version control system, right? It's popular. गिट बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, बहुत ज़्यादा फेमस है। एवरी वन, ऑलमोस्ट एवरी कोडर यूजेज इट, ऑलमोस्ट एवरी कोडर यूजेज इट। ओके, स्केलेबल है, फ्री है, ओपन सोर्स है। स्केलेबल तुम स्केल कर सकते हो इसको, फ्री भी है। ठीक है, मतलब स्केलेबल से मीनिंग ये भी आता है कि तुम किसी भी टीम के साथ एक साथ 50 लोग एक चीज़ पे काम कर सकते हैं। फ्री, it's free to use, anyone can use it, you don't need to pay any amount of money, and it's also open source, it's available to all. Okay, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही amount of people के पास available है, it's available to all. And at last, because in this 21st century we need to move fast, so it is also a fast moving control system. Okay, so I think you got my topic here, you got what I needed to say. Okay, so let's move forward and see what is ahead for us. So git जो है ये हमको help किसमें करता है? Git helps in collaboration between the peers. Okay, it helps in the collaboration, like there are so many collaboration between the people. जैसे एक कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी गिट का यूज करती हैं, क्योंकि उनको कोड शेयर करने होते हैं ना पीयर्स के बीच में। ऐसा ना हो जाए कि 2 या 3 बंदे एक ही कोड को ओवरराइट कर दें अलग अलग तरीके से, तो इस वजह से कोलैबोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है गिट को। ओके, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रैकिंग द हिस्ट्री। ट्रैकिंग द हिस्ट्री, यू नो, ट्रैकिंग द हिस्ट्री, इट इज इम्पोर्टेंट कि हमने जो पहले कोड लिखे थे वो क्या सही थे या गलत थे, या उसमें कुछ हमको अपना आगे पीछे करना है, तो उसके लिए ये यूज होता है गिट। ठीक है, उसके बाद ये कोड रिव्यू। कोड रिव्यू यानी कि हमारा जो कोड लिखा है हमने उसका रिव्यू करने के लिए यार ये गलत था या सही था, इस वजह से दैट फॉर दैट इट इज यूज्ड। ओके, सो गिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कोडर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एनी techie person. It plays a very very important role. Okay, so you need to have command on git and also github. Now we will be discussing about what is github, right? So let's move forward. So github, अब ये GitHub पे बात आती है तो देख लो, GitHub it's a website that allows developers to store and manage their code using Git. समझे मतलब क्या है ये? समझ में आया ही हो गया। It's a website that allows developers to store and manage their code using Git.
समझे कैसे अब कोड कैसे हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। वी कैन अपलोड अवर प्रोजेक्ट्स है, ओके। सो इसको एक बार रीड ही कर लेता हूँ। फोल्डर है नोन एज रिपोजिटरीज एंड इसको हम बाद में रेपोज कहेंगे, ज़्यादा इजी है, रेप कह देंगे, रेप जिम गाइस के लिए। HTTPS का एड्रेस /github.com, ओके। सो ये जो वेबसाइट है ये डेवलपर्स को एक जगह कोड रखने के लिए अलाउ करती है, मदद कर देती है कि हम गिट की मदद से कोड को रख सकें, एक जगह पे स्टोर कर सकें आराम से और उसको मैनेज भी कर सकें। जैसे हमारे घर पे हम अपना सारा सामान रख देते हैं, किसी रूम पे रहते हो, पीजी पे रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, एक जगह सामान रख देते हो ना अपना। वैसे ही कोई भी कोडर या डेवलपर अपना जो कोड है वो यहाँ गिटहब पे आके रख देता है, ठीक है, समझे। जैसे बहुत सारे हब्स होते हैं, वैसे ही एक हब है ये गिटहब, जो गिट को यूज करके सारे कोड स्टोर करता है, एंड दैट इज नोन एज गिटहब, ओके। ये कोड को मैनेज भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, इवन यू कैन अपलोड योर बुक्स, ओके। इट्स इजी, बिल्ड अ प्रोफाइल हियर, बिल्ड अ मजेदार प्रोफाइल हियर एंड see the difference, right? So the folder प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हो। बहुत लोग तो कोर्सेरा के सर्टिफिकेट के कोड्स जो हैं, कोर्सेरा के कोड्स उठाते हैं, बहुत सारे कोड्स यहीं से उठा लिए जाते हैं एक दूसरे के। ओपन सोर्स है तो सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है, तुम कहीं से कुछ भी उठा सकते हो, समझे। और क्वेश्चंस की जो बात है, मैं क्वेश्चन अभी तुम लास्ट में दे देना, मैं पूछ बता दूंगा आंसर, ठीक है। उसके बाद ये है कि फोल्डर जो होते हैं यहाँ पर, उसको हम रिपोजिटरीज के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं? रिपोजिटरीज के नाम से बोलते हैं। इट इज नोन एज रिपोजिटरीज विच इज वी कैन ऑल्सो कॉल एज रेपोज। व्हाट? रेपोज, वी कैन कॉल इट एज रेपोज, समझे। इट इज कॉल्ड ऑल्सो, इट इज इट्स एड्रेस इज https/github.com, okay. So it's like that. Okay, so now we will be moving forward for the next slide. We can say, अब देखो यहाँ पे एक और चीज देखो कि ये जो GitHub है, ये इसका जो विंडोज का एड्रेस है, इट इज लाइक https/windowsgithub.com। और जो मैक का है, मैक के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि मैक और विंडोज वाले सब अलग अलग, पुरानी विंडोज वाले को अगर किसी को यूज करना है तो दे कैन यूज इट फ्रॉम हियर, फॉर मैक यूजर्स इट फ्रॉम हियर, ओके। सो आई गेस ये तुम्हारे ये जो मैक यूजर्स और विंडोज यूजर्स का है, ये यहाँ पे जाओ नेट पे, तुरंत एक प्रोफाइल बनाओ। अगर तुमको प्रोफाइल बनाना सीखना है तो लेट मी, should I open my profile here? So give me some time. So I will show you my profile. Okay, so let me as you can see here, we have a dashboard. I have logged in the GitHub. It is for Windows, so you can see ये हमारा एक रिपोजिटरी, जो बताया कि हमारे जो फोल्डर बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। ये मेरी आईडी है श्रेयस 001, ओके। सो अपडेट्स टू योर होम पेज फीड, ये आ गया। एक बेसिक और कॉम्प्लेक्स, बेसिक भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत सारे। मैंने देखो अभी खुद हाल ही में बनाई, ठीक है। तो अभी ये देखो, यहाँ पे तुमको प्राइवेट रखनी है, पब्लिक रखनी है, रिपोजिटरी कोई भी अपना फोल्डर पब्लिकली सबको दे देना है या सिर्फ अपने पास रखना है, वो कर सकते हो। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके हमको कुछ डरना वरना नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे आराम से योर प्रोफाइल पे, एंड ये यू कैन सी, ये देखो, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरी डीपी लगी हुई है, ठीक है। Building indie space and curiosity image, founder, author, YouTuber with 900 plus listeners, tech enthusiast, editor, 20 years, editor, फलाना। देखो अभी जैसे तुम्हारा काम आएगा तो ये इंडी स्पेस, जैसे मेरा कंपनी का नाम इंडी स्पेस, सो इट्स अबाउट इंडी स्पेस। लोकेशन इट्स बेंगलुरु। लुक, अब टाइम जो हो रहा है, देखो तुम सब लोग देख सकते हो कि 11:45 हो रहा है। जो यूएस वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए अलग टाइम हो सकता है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट IST, ओके।
यू कैन मेंशन डाउन योर सोशल लिंक्स देयर। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक नई आईडी बनाई। सो क्यों? क्योंकि तुमको दिखाना था। तो देखो ये मैंने कंट्रीब्यूशन की है, और ये सब यहाँ पे तुम्हारे ये जो एरिया है ये पूरा कंट्रीब्यूशन का एरिया होगा, जो तुम्हारा दिखाएगा कि तुमने गिटहब पे कितने कंट्रीब्यूशन किए, कितना ज्यादा एक्टिव रहे थे तुम गिटहब पे आके। ऐसा नहीं है कि तुमको फ्री में कुछ, ये तुमको ना अगर ये करके दिखा दो तो मेरे व्यूवर्स ये करके दिखा दे तो मजा आ जाए, जो भी यहाँ पे भी हो सब करके दिखा दो तो मजा आ जाए, इसको सिर्फ हरा हरा। ठीक है। सो एंड दिस इज इट फॉर। So this is like this। अब अगर हम बात करें गिटहब अकाउंट बनाने के बारे में, सो इट्स लाइक वहाँ पे जाके तुमको एक क्रिएट रिपोजिटरी और रेपो। ठीक है। तुम वहाँ पे जाके अपना एक रेपो बनाओ जिसको न्यू होगी वो बेसिकली। कोई तुम नई चीज करते तो न्यू ही होती है, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं। सो उसके बाद ये होता है कि तुम यू नीड टू मेक योर फर्स्ट कमिट। कमिट यानी कि वो जो हरे रंग के ब्लॉक दिखाए ना, जो हरे रंग की पूरी टाइल्स लगी है, वो ऐसे टाइल्स अभी नहीं लगी, जब तुम आगे करोगे तब लगेंगी जाके। ठीक है। सो वो जाके तुम टाइल्स बनाओ, मेक योर फर्स्ट कमिट, और वहां पे तब ना तुम्हारा एक गिटहब अकाउंट एक्टिव होगा। गिटहब अकाउंट का नाम थोड़ा सा एकदम अट्रैक्टिव और बढ़िया सा रखना। इट शुड बी अट्रैक्टिव, और गिटहब प्रोफाइल शुड बी मेंटेनिंग। मैंने बोला ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू नीड टू बी एक्टिव ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी इंस्टाग्राम, ट्विटर। इंस्टाग्राम नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। इंस्टाग्राम पे रील चलाने के लिए नहीं, हर समय। ठीक है। ट्विटर, ट्विटर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर पे तुम ट्वीट करो। ट्विटर इज द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल। लिंक्डइन, लिंक्डइन जॉब के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, कनेक्शंस के लिए, प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। So for coders, you want to connect with coders, we want to connect with the best software minds across the world, you need to be on the GitHub, right? So this is the thing about GitHub. So I think you got the thing till now. Okay. तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर तो क्या पढ़ा है, हमने लास्ट लेक्चर तो पढ़ा क्या, जो अभी कंटिन्यू करते हैं उसी से। और उसके बाद मैं ये बताता हूँ, देखो जो चेंजेस होते हैं जो गिटहब में जो चेंजेस होते हैं उसको हम किस चीज़ से बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं कमिट के नाम से। इट इज़ नोन एज कमिट। The changes in the GitHub or Git is known as commit. Okay, I hope you got to understand now. Okay, so now we will be moving on to what? We will be moving on to what? We'll be moving on to your GitHub account। So चलो अब चलते हैं GitHub अकाउंट पे और देखते हैं कि क्या होता है आगे तुम्हारा। हाँ। Okay, so let me go here and change the screen। And yes, we are here and you can see here, you can see। अब मैं यहाँ पे आके हमारे गेटअप की प्रोफाइल खोल गई, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे अब हमको रिपोजिटरी कैसे बनानी है हमको ये देखना है। ठीक है। रिपोजिटरीज देखो, so यहाँ पे मैंने अभी कोई रिपोजिटरी नहीं बनाई है। तो हाउ टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, दैट माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, राइट? कि रिपोजिटरी बनानी कैसे है आखिर। तो चलो बताते हैं कि रिपोजिटरी कैसे बनानी है। ठीक है। Firstly, you need to click on new, and ये it should be repository name क्या डालते हैं, जैसे हम डाल दें curiosity unleashed। Okay? So it is like that कि curiosity unleashed is here। So if you need to describe that, you can also describe this। Okay, कि this is for the people, this is for the people of curiosity unleashed। Okay, so when we will be making that or doing that, so this is the description। okay, इसके बाद हम जो बात करें, अगर इसके बाद में बात करते हैं, there are two options। okay, there is one option named as public and second option is named as private। okay, so in public anyone on the internet can read your profile, read your code। okay, जो तुमने किया है वो सब publicly available है। तो प्राइवेट में सिर्फ तुम देख सकते हो। इट्स योर चॉइस कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम अपने कोड को या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तुम पब्लिक रखोगे कि
कि प्राइवेट रखोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ये आता है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विथ ऐड अ रीडमी फाइल विथ, ठीक है। इसके बाद आता है ऐड अ रीडमी फाइल, दिस इज वेयर यू कैन राइट अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोजेक्ट, दिस यू शुड रीडमी फाइल, ये तुमको टिक कर देना चाहिए, तुमको बाद में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके तुमने ये देखो एज अ गिट चूज अ लाइसेंस नथिंग नथिंग, ये सब करते जाओ और यहाँ पे जाके क्रिएट अ रिपोजिटरी एंड hence your repository is created, right? सो अब ये देखो मैंने ये रिपोजिटरी बनाई, अब मुझे कोई चीज़ इसमें एडिट करनी हुई, ठीक है। मेरा मन किया कि मेरे को इसमें कुछ एडिट करना है, सो अब हम इसमें एडिट करते हैं। तो पहले ये देखो यहाँ पे जाके एडिट करने के लिए जो पेंसिल है वो बनी हुई है, यहाँ पे जाओ, एडिट किया तुमने यहाँ पे, दिस इज फॉर द पीपल ऑफ क्यूरियोसिटी अनलीस्ड। उसके बाद ये देखो अच्छा देखो एक और अच्छी चीज़ तुमको बताऊँ, कोड 55% फास्टर विद गिटहब कोपायलट, ये सब यूज़ करके तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दिया ऑथर, ऑथर जो मैं बना रहा हूँ ना एक कोड, और भाई तुम्हारा भाई तो ऑथर है भी, दैट्स एवरीथिंग। सो यहाँ पे शुक्ला लिख दिया एंड यस, ये हो गया, ये मैंने चेंज किया कोड में, ठीक। और यहाँ पे आके मुझे ये कमिट चेंजेस नाम का एक जगह है, वहाँ पे आके कमिट चेंजेस कर दिए, अपडेट रीडमी डॉट एम डी कमिट मैसेज, यस आई हैव कमिटेड दैट, एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू ऐड यू कुड ऐड, यू शुड ऐड and otherwise you can skip this thing, so commit changes and yeah it's ready, okay। so अब यहाँ पे देखो ये आ गया, this is for the people of curiosity unleashed, ऑथर नेम शिव शुक्ला, ओके मैंने चेंज किया तो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा, यू सॉ इट राइट। सो उसके बाद हम दूसरी भी जगह देखें, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो फिर अब वापस जाएंगे अपनी स्लाइड पे, ठीक है। इतने चेंजेस तुमको पता चल रहे होंगे, ये सब इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मत ध्यान देना कि इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, एक्शंस, प्रोजेक्ट्स, विकी, सिक्योरिटी, inside settings there are so many options, so don't care about that, okay। उस पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं ईजी बना कर रखना, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो और इसमें कोई और चीज़ हो तुम्हारे अंदर दिमाग में तो फिर ये भी बताओ, वो भी चेक कर दो, ठीक है। सो नाउ वी विल कम ऑन दिस अवर गिटहब अकाउंट, हमने होगी बात कर ली, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं आगे, तो उसके बाद आता है सेटिंग अप गिट, ओके। सो अब गिट को अगर तुमको सेटअप करना है, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है, तुमको ये जानने की कोशिश करोगे क्या मैं गिटहब को कैसे सेट करूँ, गिट को कैसे सेट करूँ, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले वो वर्चुअल स्टूडियो कोड विच इज बीइंग बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, वर्चुअल स्टूडियो कोड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, उसके थ्रू तुम अपना गिट को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ये जितने भी गिटहब के कोड हैं सब वो गिट की मदद से या वर्चुअल स्टूडियो कोड की मदद से ही रन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो विंडोज़ का इसका होता है, तो विंडोज़ में हम कहते हैं गिट बैश, ओके, गिट बैश, ठीक है, विंडोज़ के लिए गिट बैश और मैक में टर्मिनल। अब मैक में टर्मिनल ना तुमको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, विंडोज़ में गिट बैश डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है, मैक में तुमको टर्मिनल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैक में टर्मिनल इज already available for all, okay, so there is no need that you should download that or make thing like that कि मुझे ये डाउनलोड करना पड़ेगा। मैक वालों तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारे जो मशीन है उसमें वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, समझे। सो नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज यू कैन सी गिट बैश, ओके। सो गिट बैश कैसे है, गिट बैश का मैं इंटरफेस दिखाऊं तुम लोगों को, तो लेट मी शो यू वेट अ सेकंड। so it is like this, okay, so you can see यहाँ पे हम देखें तो हमारा ये गिट बैश हमने सर्च किया है, सो यहाँ पे जाके हम गिट में जाके ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद वी कैन देखो यहाँ पे मैक ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए मैं यहाँ पे जाके डाउनलोड करोगे, उसके बाद रन कर लोगे। यू कैन सी श्रद्धा कापराज वीडियो, और मैंने श्रद्धा कापरा है कोड विद हैरी, उनकी वीडियो देख लो, बहुत ईजी है डाउनलोड करने के लिए, तुरंत डाउनलोड करो आराम से, ठीक है। ये अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया है वो 2.45.2 है, ठीक है, इसको विंडोज से डाउनलोड कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ओके। सो नेक्स्ट थिंग वी विल बी कमिंग बैक टू अवर repository and all,
सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो वी विल बी सीइंग दिस। सो ये देखो आ गए हम अपने पीपीटी पे। सो अब देखते हैं यहाँ पे आके। सो कन्फ्यूगर गेट, देखो गेट को अगर तुम गेट जो होता है तुम उसको कन्फ्यूगर कर दें, कैसे कन्फ्यूगर करोगे? देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि यार हमने बना तो लिया लेकिन हम कन्फ्यूगर कैसे करें? तो गेट कन्फिग्रेशन करने के लिए जो है वो ग्लोबल यूजर नेम, ये माइनस माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस माइनस का साइन है, ठीक है। सो ग्लोबल यूजर नेम, यूजर डॉट नेम स्लैश माई नेम, मुझे अंडर कॉमा माई नेम, ओके। ये तो फिर इसका ये तुमको ना ये इस वजह से है कि अगर तुमको पब्लिक, क्योंकि ग्लोबल यानी कि तुमको पब्लिक आईडी रखनी, प्राइवेट आईडी रखनी तो फिर अलग बात है, लेकिन दिस इज फॉर पब्लिक आईडी, ओके। सो उसके बाद अगर हम देखें तो इट इज गेट कन्फिगरेशन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुई है, सॉरी फॉर दैट, ग्लोबल यूजर डॉट ई मेल xyz@email.com जो भी है, ठीक है। और उसके बाद आती है गेट कन्फिगरेशन लिस्ट, ओके। सो यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है बात की गेट कन्फिगरेशन होता क्या है, ठीक है। इसका हम ये देखते हैं कि कैसे करते हैं, ये भी बता दिया। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ग्लोबल और लोकल क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में आता होगा ये ग्लोबल और लोकल क्या है, ये ग्लोबल और लोकल है क्या भैया, ठीक है भैया बताओ नहीं ग्लोबल और लोकल है क्या, मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो ग्लोबल जो है वो वर्ल्ड वाइड तुमको पब्लिकली अवेलेबल है, इट इज पब्लिक, राइट। लोकल इज लाइक सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ग्लोबल यानी कि सबके लिए चल रहा है, सबका साथ सबका विकास वाला काम है, ठीक है। सो आई गेस यू माइट हैव लर्नड और got the point that I wanted to say here, okay. So now I will be in the land of colors where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright, from the dusty streets to the city lights.